A very pleasant morning to all the dear students of class 6. As in the previous video we have discussed in our chapter number 4 we are discussing that the concept of curves, lines, line segments we have discussed, okay, and the angles we have discussed in the previous video. So now moving further with the chapter, today we are going to discuss about the 3 other remaining geometrical shapes, you can say, that is triangles, then quadrilaterals and circles. Okay, so you have known that what is curve, and you have known that in mathematics the curve can be straight. Okay, means anything that you are drawing on the paper, that is considered as a curve in mathematical language. Okay, so talking about triangle, what the definition you give to a triangle is, a triangle is a three-sided polygon. So a triangle is a three-sided polygon. Three-sided means having 3 sides. Okay, polygon means, मैंने आपको polygon का मतलब बताया था, poly means many, sides, gun means sides. So polygon means straight line से बना हुआ figure आपका polygon था. ओके, और मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी पॉलीगन बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स चाहिए ही. तो ट्राइंगल आपका एक पॉलीगन है दैट इज मेड अप ऑफ 3 साइड्स. ओके, यू नो दैट ट्राई एंड ऑल्सो ट्राइंगल मीन्स, ट्राई मीन्स 3, angles means angle. It means that a figure having 3 angles, or you can say 3 sides. So here you can see on the screen that this is the triangle ABC. Okay, and you know that what is side, what is line segment, you have known, and also you have known what is angle and how do you write angle. So here we, and also the meaning of vertex. It means, मैंने आपको vertex बताया था कि जब आपका दो लाइन सेगमेंट पेयर में जहाँ पर ज्वाइन हो रही हैं वो आपका वर्टेक्स है. जैसे ए बी लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रही है बी सी से वर्टेक्स बी पर, तो बी आपका वर्टेक्स है. वैसे ही बी सी लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रही है ए सी से एट सी, सी आपका वर्टेक्स है, और लाइकवाइज यू हैव वर्टेक्स ए. साइड्स की बात करें तो यहाँ पर ए बी आपकी एक लाइन सेगमेंट है, तो ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, एंड ए सी इज द थर्ड साइड. सो हेयर यू कैन राइट द 3 साइड्स आर ए बी. ओके, ए बी, बी सी, बिकॉज इट इज लाइन सेगमेंट तो मैंने ऊपर लाइन डाली है, ठीक है, एंड योर ए सी. दीज आर 3 साइड्स. 3 एंगल्स की बात करें, सो व्हाट यू हैव, एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल. आप इसको, क्योंकि ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, तो सिंपली एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी भी लिख सकते हैं. बट इफ़ यू विल राइट डाउन टेकिंग द वर्टेक्स एंड द रेज, व्हाट यू विल राइट, एंगल ए बी सी. तो आपका 3 एंगल क्या है, एंगल ए बी सी है ना. बी वाला जो एंगल है, बिकॉज इट इज़ बी, ये ए बी सी कौन सा एंगल है, बेसिकली बी, बिकॉज बी इज़ एंगल एंड बी हमारा मिडल में आएगा. हमें पता है कि जिस वर्टेक्स पर वो एंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वर्टेक्स हम मिडल में लिखते हैं, तो ए बी सी हमने लिखा. लाइकवाइज यू हैव एंगल, दिस एंगल विल यू विल राइट इट एज ए सी बी. सो एंगल ए सी बी इज़ योर सेकेंड एंगल, एंड थर्ड एंगल इज दिस, सो यू कैन राइट इट एज बी ए सी या फिर सी ए बी. तो वी विल राइट एंगल बी ए सी. ओके, सो दीज आर द 3 एंगल्स. देन 3 वर्टिसेस आर ए बी एंड सी. वर्टेक्स इज कॉल्ड इन सिंगुलर, ठीक है, एंड वर्टिसेस मीन्स प्लूरल. तो 3 वर्टिसेस आर ए बी सी. दिस इज अवर ट्राइंगल. एंड ऑल्सो यू नो दैट लाइक यू हैव नोन द portion of the curve that is interior, exterior, है ना, and on the curve that I have discussed in the previous video. So here likewise here the triangle, this portion is the interior of the triangle, है ना. यहाँ पर जो भी कोई point होगा that is considered in the interior. This is the exterior of the triangle, and the point here on the side is on the triangle. Okay, so interior and exterior of triangle will exist likewise, like it has existed in the case of polygons. Now this is all about triangle only. Now move toward the exercise 4.4. what it says, simple exercise it is. Okay, if you have understood the definition. So exercise 4.4 says, draw a rough sketch of triangle ABC.
Okay, mark a point P in its interior and a point Q in its exterior. तो आपको एक ट्राइंगल ABC ड्रॉ करना है, जैसे ये एक ट्राइंगल है ना, एंड उन्होंने बोला है कि मार्क द पॉइंट P इन द इंटीरियर. तो उसके इंटीरियर में एक पॉइंट P आप मार्क कर देंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे इस फिगर में मार्क है. तो बस आपको एक रफ फिगर ट्राइंगल का मीन्स, रफ फिगर मीन्स यू विल यूज स्केल. ओके, स्केल से ड्रॉ करना आप ट्राइंगल, देन P पॉइंट मार्क करना इन द इंटीरियर एंड Q पॉइंट इन द एक्सटीरियर मीन्स बाहर आपका यहाँ पर जैसे पॉइंट R है तो इसकी जगह पर पॉइंट आपका Q हो जाएगा इन द एक्सटीरियर. सो दे आर सेइंग इज द पॉइंट A इन इट्स इंटीरियर और इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर. तो वो कह रहे हैं कि पॉइंट A मतलब अगर आपने ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया है, अगर मैं इस ट्राइंगल को नेम करूँ ABC, तो अगर आपने ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया है तो A पॉइंट वो कह रहे हैं कि ये एक्सटीरियर में है या इंटीरियर में. सो यू विल राइट दैट नाइदर इन एक्सटीरियर नॉर इन इंटीरियर. ये ना ही एक्सटीरियर में है ना ही इंटीरियर में है, ठीक है. एंड यू विल राइट डाउन द क्वेश्चन इन द नोटबुक. ओके, नाइदर इन एक्सटीरियर नॉर इन इंटीरियर बिकॉज इट इज़ ऑन द ट्राइंगल है ना. पॉइंट A ना ही एक्सटीरियर में है ना ही इंटीरियर में है. दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. देन क्वेश्चन नंबर 2 सेज, अब आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपने जो डेफिनेशन जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है उसी को यूज़ करके इस ट्राइंगल में से अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल इन क्वेश्चंस का आंसर करना है. सो व्हाट दे आर सेइंग, आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर. इस फिगर में आपको 3 ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने हैं. यू कैन सी दैट इफ आई जस्ट पुट दिस, जब मेरे पास ये वाला ट्राइंगल है, अगर मैं इसको हाइड कर लूँ तो यू कैन सी दैट यू हैव ट्राइंगल ABD है ना. एक ट्राइंगल तो आपका ये हो गया. अगर ये हाइड कर लिया मैंने, यू हैव ट्राइंगल ADC. 2 ट्राइंगल्स हो गए. ओके, you have to identify 3 triangles in the figure. So you can see that ADC is the triangle. Then अगर मैं ये AD लाइन को हाइड कर लूँ, AD लाइन कोई लाइन नहीं है, then you can see that ABC is a triangle. So like this we have 3 triangles. Okay, so let me write down the solution for you here. The 3 triangles that you have are, क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव टोल्ड यू मीन्स आप ABC आपने जैसे फिगर ड्रॉ किया ट्राइंगल का है ना, एंड P पॉइंट इंटीरियर में और Q पॉइंट एक्सटीरियर में, बस ऐसे ड्रॉ करना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप, ये हमारे पास है फिगर जो आपकी बुक में गिवन है. सो अकॉर्डिंग टू दिस द 3 ट्राइंगल्स आर ट्राइंगल एंड ऑल्सो वन मोर थिंग क्लास 6 दैट इज लेफ्ट. बेटा ट्राइंगल, जब आप ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं तो इसको लिखते कैसे हैं? इट इज़ रिटन एज ट्राइंगल ABC है ना. ये इसका डिनोशन होता है, मतलब आप पहले ये ट्राइंगल बनाएंगे छोटा सा और उसके बाद लिखेंगे ट्राइंगल ABC. इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल ABC. ओके, सो मीन्स ये रिप्रेजेंटेशन है ट्राइंगल का. ओके, 3 ट्राइंगल्स यहाँ पर क्या होंगे आपके? ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ADC, दिस इज ट्राइंगल, and triangle ABC because these are made up of 3 line segments we can see. Okay, so this is this. Now you they are asking 7 angles. 7 angles हमें इस फिगर में से फाइंड करने हैं. So very easy. पहला एंगल मुझे ये दिखाई दे रहा है, लेट अस जस्ट मार्क दिस इज एंगल. क्योंकि एंगल कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, मुझे एंगल कहाँ पर दिखेगा? जहाँ पर एक वर्टेक्स होगा और 2 आर्म्स होंगी, बिकॉज आई नो दैट एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय 2 आर्म्स एंड 1 वर्टेक्स. तो मुझे वही देखना है कि 2 आर्म्स मतलब 2 साइड्स और एक वर्टेक्स वहाँ पर हो. तो एक एंगल ये दिखा मुझे, एक एंगल ये दिखा, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है. एक एंगल ये पूरा भी है ना, जो कि इसके AB और AC के बीच में है. तो 1 2 3 4 5 हो चुके. 6th एंगल मेरा ये है, ठीक है, जो कि AD और BD 2 रेज के बीच में है और 2 लाइन सेगमेंट कह सकते हैं आप, उनके बीच में है. और 7th एंगल मेरा ये है, ठीक है. तो मैंने 7 एंगल्स फाइंड कर लिए. जस्ट वी हैव टू राइट डाउन द नेम्स. सो दिस इज एंगल ABD. You know that how to write the angles. Angle ABD. Then you have angle ABD and then ADB. Then angle BAD. Okay. Then angle ADC. Then angle ACD. Then angle DAC and then angle BAC. So 1 2 3 4 5 6 7. These 7 angles are there according to this figure. Okay. 6 line segments. तो line segments you know very well. This AB is line segment, BD is line segment. तो हमें ये लिखनी है
ए बी, लाइन सेगमेंट का मार्क आप ज़रूर बनाएंगे, द सिंबल ए बी, ओके। देन यू हैव बी डी, देन यू हैव डी सी, then you have BC, okay, BC is complete this line segment, then you have AD, this AD, then you have AC. So these are 6 line segments, okay. Now two triangles having angle B common. तो एंगल B आप देखो टू ट्राइंगल्स में किस किस में कॉमन है। जब आपने ट्राइंगल लिखे थे, एक ये लिखा था, इसमें भी देखो B आया था, और एक ये लिखा था, इसमें भी B आया था। बेसिकली एंगल B इज कॉमन इन द ट्राइंगल ABD में भी एंगल B है और ABC में भी एंगल B है। तो टू ट्राइंगल्स हैविंग एंगल B एज कॉमन इज योर ट्राइंगल ABD and triangle ABC. Okay, so this is about your exercise 4.4. It is done. Now next we are going to discuss what is quadrilateral. Okay, so class 6 quadrilateral. Quad means 4, lateral means side. ठीक है, quad का मतलब होता है 4 and lateral means sides. So a 4-sided figure is called as a quadrilateral. Okay, or a polygon made up of 4 sides is called as a quadrilateral. So this is the definition. A 4-sided polygon is called as your quadrilateral, is called as quadrilateral. So you can draw quadrilateral in any way, है ना। 4-sided figure को हम quadrilateral बोलते हैं। जब हम quadrilateral की आपने, but you know that you have learned square, rectangle, है ना, आपने वो earlier classes में पढ़े हैं। तो quadrilateral square भी एक quadrilateral होता है क्योंकि वो 4 साइड से मिलके बना है, लेकिन वो एक स्पेशल quadrilateral है। उसकी स्पेशलिटी ये है कि उसकी 4 साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ स्क्वायर, बट है वो क्वाड्रिलेटरल, उसकी बेसिक आइडेंटिटी क्वाड्रिलेटरल है। सो क्वाड्रिलेटरल इज योर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्वाड्रिलेटरल इट मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ 4 साइड ओनली, ठीक है ना। कौन सी साइड लार्ज है, कौन सी स्मॉलर है, इक्वल है या नहीं है, दैट डज नॉट मैटर व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो दिस इज द फिगर, यू कैन सी दिस इज द फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD. Likewise, like triangle, here also in the quadrilateral you can see that it is made up of 4 line segments, and line segments are AB, BC, CD and DA. And also class 6 I must tell you that जब भी आप quadrilateral को या triangle को या किसी फिगर को नेम करते हैं तो आप हमेशा उसको मतलब या तो clockwise या anti clockwise. Clockwise means as the clock moves, ऐसे, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन में, जो हमारी रियल टाइम वाली क्लॉक होती है। तो 2 तरीके से ही नेमिंग करते हैं, मतलब या तो आप इसको ABCD एक सीक्वेंस में ऐसे पढ़ेंगे, या फिर यू विल रीड इट एज ADCB या ऐसे करेंगे। कभी भी हम ऐसे रीड नहीं करते फिगर को एंड नेम नहीं करते कि ACBD, इस तरीके से नहीं करते, ठीक है, इसको ध्यान देना। So you have 4 line segment AB, BC, CD and DA, 4 vertex. A is a vertex, B is a vertex, C is a vertex, D is a vertex. You know that what is the property, what is the definition of vertex, okay. And then angle, you can see that there are 4 angles, angle A, angle B, angle C and angle D, ठीक है। और मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि एंगल DAB, ओके, एंड सिंपली एंगल A भी बोल सकती हूँ इन दिस केस। तो आपका 4 एंगल्स हो गए। नाउ व्हाट आई हैव रिटन हेयर इज अपोजिट एंगल्स। अब आपको पता है कि एंगल्स साइड वर्टेक्स में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अपोजिट एंगल्स की अगर बात करें तो अपोजिट मीन्स आमने सामने, है ना, उसके सामने वाला। तो एंगल ए के सामने जो होता है वो उसका अपोजिट वर्टेक्स पर जो एंगल है वो होता है एंगल C है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। सो दिस इज कॉल्ड एज अपोजिट एंगल। सो यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, 2 पेयर, मतलब एंगल A एंड एंगल C आर अपोजिट एंगल्स एंड एंगल B एंड एंगल D आर अपोजिट एंगल्स, मतलब अपोजिट वर्टेक्स पर जो एंगल प्रेजेंट है वही आपके अपोजिट एंगल है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अपोजिट एंगल। सो यू मस्ट नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म अपोजिट एंगल्स। वो आपका आगे कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और हायर क्लासेस में भी आएगा, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। देन यू हैव एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, एडजेसेंट मीन्स बराबर में, ओके, मीन्स उसके जस्ट बाय साइड, ठीक है, बराबर। सो एडजेसेंट साइड मतलब ए बी के जस्ट साइड में बराबर जो उसकी साइड है, जस्ट उस एक वर्टेक्स जो कॉमन है उसी वर्टेक्स से जुड़ी हुई, ठीक है, उसके एंड पॉइंट से जुड़ी हुई जो दूसरी साइड है, दैट इज बी सी। दिस इज एडजेसेंट साइड्स। तो अब अगर आप देखें तो ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स। लाइकवाइज डी ए एंड ए बी,
DA and AB are adjacent sides, है ना. BC and CD are adjacent side. Okay, and CD and AD are adjacent sides. So you can write here the 4 pair of adjacent sides आप लिख सकते हैं in the case of quadrilateral. Okay, so this is about your quadrilateral. And also opposite sides, जैसे opposite angles हैं वैसे ही opposite side की बात करें तो AB के सामने जो side है वो उसके opposite होगी, that is CD. BC के सामने जो side है opposite उसके AD. ठीक है, these are opposite side. Now talking about exercise 4.5, that is basically simply based on the concept. Okay, and you will do by yourself the question number 1 and 2. Exercise 4.5 says draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. Draw its diagonals, name them. ठीक है, तो PQRS आपको एक quadrilateral draw करना है, उसके diagonals draw करने हैं and name them. Is the meeting point of the diagonal in the interior मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. तो मतलब मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगनल जो होगा, दो डायगनल्स जब इंटरसेक्ट करेंगे उनका जो मीटिंग पॉइंट होगा वो इंटीरियर में होगा या एक्सटीरियर में. तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली क्लास 6 इसी फिगर में बता रही हूँ. देखो क्या बोला गया है. डायगनल आपको पता है, डायगनल आपका नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स से बनता है. मतलब कि ए के एडजेसेंट वर्टेक्स, एक एकदम बराबर वाला वर्टेक्स तो बी है, लेकिन नॉन एडजेसेंट कौन सा है, सी. मतलब जब मैं ए और सी को ज्वाइन करती हूँ, सो दिस इज माई डायगनल दैट इज ड्रॉन विद द रेड पेन एंड दिस बी डी इज डायगनल. सो ये 2 डायगनल्स हैं. ठीक है ना, अपोजिट वर्टेक्स को जब ज्वाइन किया तो मेरे को डायगनल्स मिले एंड दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगनल. मैंने इसको ओ मार्क कर दिया. ओके, सो दिस इज योर डायगनल. सो दे आर आस्किंग PQRS आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे क्वाड्रिलेटरल. ओके, उसके डायगनल्स का इंटरसेक्शन दिखाएंगे एंड देन दे आर आस्किंग दैट द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगनल्स दैट इज O, ये इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में. सो यू कैन सी दैट दिस इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. द मीटिंग पॉइंट O इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ये आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 में. सो यू कैन राइट हियर. मतलब आप फिगर भी ड्रॉ करेंगे, फिगर कंप्लीट करेंगे योर PQRS लाइक रफ फिगर, देन फिर उसके डायगनल्स ड्रॉ करेंगे विद द स्केल यू विल ड्रॉ. ओके, then this is the meeting point and you will write that meeting point O is in the interior. Okay, is in the interior of quadrilateral. Now in the question number 2 they are saying draw a rough sketch of quadrilateral KLMN. KLMN का आपने रफ स्केच ड्रॉ किया. स्टेट, अब स्टेट क्या करना है, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स. मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, आप खुद ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को. 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स भी आप लिख सकते हैं, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स भी लिख सकते हैं और 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो यू विल ट्राई द क्वेश्चन नंबर 2 बाय योरसेल्फ. आई हैव टोल्ड इन द एग्जांपल. एंड क्वेश्चन नंबर 3 यू विल लीव दिस फॉर नाउ बिकॉज आई विल टेल यू in the next lecture in meet. Okay, and this will be our subject enrichment activity. The question number 3 will be our subject enrichment activity for the month of August, and I will tell you this after this means in the next lecture. Okay, so question number exercise 4.5 में you have to do question number 1 and question number 2. So now let us discuss our next and the last concept, last geometrical shape of this chapter and exercise 4.6, and we will finish up with this chapter then. So that is your circle. So let us understand what is circle and what are the parts of circle. So class 6, next is your circle. Circle is a simple closed curve in which every point is at a fixed distance from center. Okay, from center या फिर आप center को कह सकते हैं from fixed point. Center is can be called as a fixed point. ठीक है, तो definition का मतलब क्या है बेटा. सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. आपने कर्व जाना, ठीक है, सिंपल कर्व भी आप जानते हैं, क्लोज्ड है. ठीक है, तो सर्कल भी आपका एक कर्व ही है जो कि सिंपल है, क्लोज्ड है. इन विच, जिसमें क्या स्पेशलिटी है, एवरी पॉइंट इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम
सेंटर मीन्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कहने का मतलब ये, लाइक हेयर यू कैन सी दैट दिस इज माई पेंसिल एंड कंपास। ओके, सो दिस इज माई कंपास, हाउ डू आई ड्रॉ अ सर्कल। मैंने कोई भी एक डिस्टेंस लिया अपने कंपास में, है ना, कोई भी एक ये मेजरमेंट मैंने ली, सुटेबल, जस्ट ए स्मॉल मेजरमेंट, ठीक। फिर उसके बाद मैंने ये पॉइंट जहाँ पर मैंने अपना कंपास, ये देखो, ये कंपास जहाँ पर मैंने पुट किया है, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट को मैंने यहाँ पर प्लेस किया, पुट किया। उसके बाद मैंने अपना सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ठीक, लाइक दिस। ये यहाँ से हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ये यहीं पर रहेगा जब तक ये सर्कल ड्रॉ होगा कंप्लीट, ठीक है। तो केयरफुली हैंडलिंग द पेंसिल इन एन ईजी वे, I just made this circle. Okay, तो मैंने अपना विद द हेल्प ऑफ कंपास ये सर्कल ड्रॉ किया। जब मैंने दिस इज योर सर्कल, दिस इज अ क्लोज्ड, दिस इज अ सिंपल कर्व एंड दिस पॉइंट इज योर फिक्स्ड पॉइंट, है ना। ये आपने खुद देखा कि ये फिक्स्ड पॉइंट था, ये पॉइंट चेंज नहीं हुआ पूरा सर्कल ड्रॉ करते हुए। और आपने ये भी देखा कि जो कंपास की मेजरमेंट थी वो भी सेम ही रही। मतलब कि अगर ये जो सर्कल आपका बाउंड्री बना है, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस मेज़र करूं या इस पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस मेज़र करूं, ये फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस मेज़र करूं, तो हर एक पॉइंट से ये बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स हैं, है ना, बाउंड्री पे पॉइंट्स हैं, तो बाउंड्री पर जितना भी पॉइंट है उससे आपका सेंटर फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मीन्स इफ आई टेक दिस, ठीक है, अगर मैं ये सर्कल से स्केल से मैंने सेंटर से पेरीफेरी पे, मतलब बाउंड्री पर, ये सर्कल पर ये लाइन ड्रॉ की, तो ये आपका एक फिक्स्ड डिस्टेंस है जो कि पूरे सर्कल में सेम है, ठीक है। सो हेयर दे आर सेइंग दिस फिक्स्ड पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सर्कल। सर्कल आपको पता चल गया, एक सिंपल क्लोज कर्व है जिसमें एवरी पॉइंट इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और फिक्स्ड डिस्टेंस पर कैसे है ये आपको पता चल गया। सो दिस फिगर दैट इज मेड, दिस इज योर सर्कल, है ना, ये सर्कल है। नाउ टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सर्कल, तो पहले पार्ट की हम बात करते हैं, दैट इज योर सेंटर। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर। देन द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, दिस इज द फिक्स्ड डिस्टेंस, दिस इज योर रेडियस, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, देन द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। जो ये आपकी बाउंड्री है, जैसे आप फिगर में पेरीमीटर की बात करते हैं ना, तो जो आपकी ये बाउंड्री है, दिस बाउंड्री, दिस इज योर सरकमफ्रेंस, दिस बाउंड्री इज कॉल्ड एज सरकमफ्रेंस। जैसे स्क्वायर का या रेक्टेंगल का आपका पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर मीन्स आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट, वैसे ही सर्कल का ये पेरीमीटर समझ लीजिए आप, सर्कल का आउटर बाउंड्री का मेजरमेंट इज कॉल्ड एज योर सरकमफ्रेंस। तो यू हैव नोन सेंटर, रेडियस, सरकमफ्रेंस। देन द नेक्स्ट टर्म इज योर कोड, it is called as chord, chord, chord. Chord is a line segment joining any two points on the circle। मतलब ये सर्कल है और इस पर मैं 2 पॉइंट्स ले लूँ, जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ कंसिडर कर लिया और एक पॉइंट मैंने ये कंसिडर कर लिया, तो जिस लाइन सेगमेंट से मैं ये ज्वाइन कर दूँ दोनों पॉइंट, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट से मैंने दोनों पॉइंट ज्वाइन कर दिए, तो दिस लाइन सेगमेंट इज माई chord, दिस इज कॉल्ड एज chord। ओके, सो is a line segment joining any 2 point on the circle is called as chord. Then diameter, diameter is the longest chord of the circle passing through the center। diameter होता है आपका जो कि आपका सेंटर से पास हो, डायमीटर वो लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से पास होगा और सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करेगा, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। Here you can see another figure for the circle, okay। और ये सेंटर है, ये सर्कल ड्रॉ किया है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि डायमीटर वो कोड है, वो लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। मतलब एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है और सेंटर से पास करेगा। नेसेसरी ये है कि वो सेंटर से पास करे, तो बेसिकली दिस इज योर डायमीटर, है ना। और मैं कितनी भी डायमीटर ड्रॉ कर सकती हूँ, मतलब सर्कल में एक डायमीटर मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं ऐसे वर्टिकली ही बनाना है मुझे। तो डायमीटर, दिस इज योर डायमीटर एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर को ही लॉन्गेस्ट कोड इसलिए बोला है क्योंकि कोड आपका वो लाइन सेगमेंट होता है जो 2 पॉइंट पे कट करे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इस सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे, 2 पॉइंट पे टच करे, ठीक है। तो आपका 2 पॉइंट पर टच कर रहा है ये कोड,
ठीक है, ये लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स पर टच कर रहा है और ये डायमीटर से पास हो रही है, ये लॉन्गेस्ट कोड है। इससे बड़ी कोड आप सर्कल में बना नहीं सकते, ठीक है। अगर मतलब आप कोड आपको पता है दैट लाइन सेगमेंट दैट टच द सर्कल और कट द सर्कल एट 2 पॉइंट, है ना। सो दिस इज योर डायमीटर। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज योर आफ्टर द कोड एंड द डायमीटर, नेक्स्ट इज okay, so if I had drawn this circle, this is small circle with its center, then arc is a part of circle on its circumference। मतलब circumference पर अगर मैं थोड़ा सा भी पार्ट कंसिडर करूँ सर्कल का, मतलब मैंने ये पार्ट कंसिडर कर लिया, ठीक है, ये पार्ट कंसिडर कर लिया और इसको इस पॉइंट को नेम कर दिया A एंड इस पॉइंट को नेम कर दिया B, देन दिस AB इज कॉल्ड एज आर्क, ठीक है। ये AB को मैं आर्क बोलूँगी, मतलब थोड़ा सा पार्ट, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, part on circle, part of circle on its circumference is your arc, this is arc AB। and इसको आप डिनोट कैसे करते हैं, जैसे लाइन सेगमेंट के लिए आप लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर, आर्क के लिए आर्क AB आपको बताना है तो यू विल राइट AB और उसके ऊपर हल्का सा ऐसे कर्व ड्रॉ करते हैं। दिस इज द डिनोशन, दिस इज द नोटेशन फॉर आर्क, दिस इज आर्क AB, ओके। So this is arc. These term of the circle class 6 are very important। ये हमेशा सर्कल की जहाँ भी बात होगी ये हमेशा सर्कल के साथ एसोसिएटेड रहेंगी, हमेशा इन योर हायर स्टैंडर्ड, एवरी स्टैंडर्ड इन अप टू योर 12th एंड उसके बाद भी आपके पास हमेशा ये टर्म्स रहेंगी। तो आप इनका बेसिक, अदरवाइज स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेन कन्फ्यूज अबाउट कोड, अबाउट डायमीटर, they always remain confused because they do not understand the basic concept, basic definition। so आपको basic definition समझना बहुत ज़रूरी है कि arc क्या है, code क्या है, diameter क्या है। next is your sector। sector, a region in the interior, region means part, area in the interior of the circle, इन सर्कल के इंटीरियर में है, ठीक है। एनक्लोज, एनक्लोज मीन्स बंद है, जो एनक्लोज का मतलब है कि जो कवर्ड है, बंद है, बाउंड्री है जिसकी, ठीक है। किससे? बाय एन आर्क, एक आर्क से ऑन वन साइड एंड अ पेयर ऑफ रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, ठीक है, रेडियाई ऑन द अदर 2 साइड्स, मतलब कि वो रीजन सर्कल के इंटीरियर में जो एक साइड से तो आर्क से बाउंडेड है और दूसरी साइड से अ पेयर ऑफ रेडियाई। अब रेडियाई मीन्स रेडियस, आपको पता है कि अगर मैं सेंटर को किसी पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो ये मेरी रेडियस होती है ना। मैंने ओ सेंटर को मार्क कर दिया और एक रेडियस मेरी ये है, ठीक। सो बेसिकली कि ये आपका दिस पोर्शन इज योर सेक्टर, okay। so according to the definition it is marked, it is enclosed, it is covered by arc on one side, AB arc से covered है और दूसरी साइड से OA और OB 2 रेडियस से covered है। so this is your sector, okay। then they are talking about segment। a segment of a circle is the region in the interior, it is also in the interior of circle, enclosed by an arc and a chord, okay। यहाँ पर arc से और chord से enclose है। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पर समझ लो कि मैंने यहाँ पर ये arc कंसिडर कर ली, ठीक है, PQ arc कंसिडर कर ली और एक chord ड्रॉ कर दी, मतलब इस थोड़ा बड़ा हम arc ले लेंगे जैसे कि ये, ठीक, ये chord ड्रॉ कर दी मैंने और ये मेरी PQ arc है, ठीक है। P ये पॉइंट है और ये पूरा आर्क है, Q ये पॉइंट है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, दिस पोर्शन, दिस इज कवर्ड बाय कोड एंड आर्क, एनक्लोज्ड बाय कोड एंड आर्क, दिस इज योर सेगमेंट, ओके। तो आप फिगर ड्रॉ करेंगे और मार्किंग करेंगे। एंड ऑल्सो क्लास 6 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.6 में यही कोड, सेगमेंट, सेक्टर, यही सब आपको मार्क करना है, ड्रॉ करना है। तो इन्हीं डेफिनेशन पर बेस्ड है, तो क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, ओके। सो दिस इज योर सेगमेंट। एंड ऑल्सो in the case of segment, this segment, that the part that is your स्मॉलर पार्ट, ठीक है। सेगमेंट आपका ये वाला एक सेगमेंट हो गया, ठीक है, जो मैंने ये ड्रॉ किया, ये स्मॉलर सेगमेंट है तो इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आएगा बट आई एम टेलिंग हियर ऑरली, दिस इज कॉल्ड एज योर माइनर सेगमेंट। और इसके बाद जो इधर पोर्शन बचा है ना, ये वाला दिस इज योर मेजर सेगमेंट, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये पी क्यू पॉइंट से ये वाला भी तो एक आर्क है पूरा का पूरा, ये भी तो पूरा आर्क है और ये कोड है आपकी पी क्यू।
तो ये भी तो एनक्लोज है, तो ये आपका मेजर सेगमेंट हो जाता है। वैसे ही ये वाला आपका सेक्टर है, तो ये ओ ए एंड ए बी से एनक्लोज है, तो ये आपका माइनर सेक्टर है। जो बाकी इधर बचता है वो सारा आपका मेजर सेक्टर हो जाता है। माइनर मीन्स छोटा, मेजर मीन्स बड़ा। ओके, दिस इज अबाउट सेक्टर एंड सेगमेंट। नाउ नेक्स्ट इज योर, and the next portion is your semicircle. A diameter of circle divides it into two equal parts. Each part is called as a semicircle. Semi means half, circle is circle. So semicircle means half of circle. Like you have here diameter, then this half circle, okay, means ये वाला portion खाली, ये पूरा पोर्शन इधर शेडेड अगर मैं कर दूं, सो दिस इज योर सेमी सर्कल, मीन्स हाफ ऑफ द सर्कल। ओके, सेमी सर्कल, दैट डायमीटर डिवाइडेड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट, ये पार्ट, दीज आर टू सेमी सर्कल्स। ओके, सो दिस इज योर सेमी सर्कल। नाउ दिस इज ऑल अबाउट सर्कल एंड द पार्ट ऑफ द सर्कल। लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज 4.6 that you will be going to do by yourself. In the case of doubt, just let me know. Here you can see question number 1 says from the figure identify this is the figure, identify the center of circle. Center of circle is O, 3 radii that you can see OA, OB, OC, है ना, a diameter, a chord, 2 points in the interior, a point in the exterior. Okay, exterior point, here you can see that Q point is at the exterior, and अ सेक्टर, अ सेगमेंट, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन में विद द फिगर भी बताया है। यू विल डू बाय योरसेल्फ एंड ऑल्सो यू विल राइट द क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी एक्सरसाइज। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2 सेज इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कोड? इट इज येस। ओके, क्योंकि हर एक डायमीटर आपका कोड होता है। यू नो दैट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, तो हर एक डायमीटर आपका कोड होगा। यस। इज एवरी कोड ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो डायमीटर? नो, क्योंकि आप ये देखिए ईडी यहाँ पर कोड है लेकिन डायमीटर नहीं है, क्योंकि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा। मतलब कोड, वही कोड डायमीटर होगा जो सेंटर से पास होगा। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क इट्स सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सेक्टर, सेगमेंट, पॉइंट इन द इंटीरियर, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर एंड आर्क। तो आप कुछ भी आर्क का नेम, कुछ भी किसी का भी नेम कर सकते हैं एंड यू हैव टू do this. Next is question number 4, that is, and in the question number 4 it says say true or false. The first part is 2 diameters of a circle will necessarily intersect, and it is true because 2 diameters will necessarily intersect. आप ड्रॉ करके देख सकते हैं. The center of a circle is always in its interior. It is true because center will always remain in the interior. So this is all about your chapter number 4, class 6. Watch the complete video, understand the each and every definition, make your proper notes and complete your work. And thank you for watching the videos, and share the videos more and subscribe the channel, and stay happy and stay safe at home.